Good afternoon, everyone. I hope you all are doing great. So, Raje, basically, ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਟੌਪਿਕ ਵੋਕੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁੰਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਓਮੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ F ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ MCQs ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਰੋਮ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦ MCQ ਸੀਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, PS ਚੈਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1। ਕੁਐਸਚਨ 1 ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਡੈਸ਼ ਸਨ ਸ਼ਾਈਨਸ ਬ੍ਰਾਈਟਲੀ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੇ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਵਾਲੇ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਦਾ। ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਦਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਨ ਸ਼ਾਈਨਸ ਬ੍ਰਾਈਟਲੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਐਨ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਤੇ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਏ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਏ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਵਨ, ਐਨੀ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਚ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏ। ਅਗੇਨ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਏ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਏ ਆਰਟੀਕਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡਸ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਐਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਨ ਯੂਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਊਲ ਸਾਊਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਏ ਔਰ ਐਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੇਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਏ ਔਰ ਐਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਏ ਅਤੇ ਐਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੀ, ਦ ਔਰ ਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਦ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਵਾਊਲ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਦੇ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਸਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਫॉर ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੰਥ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਓਮੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਏ ਔਰ ਐਨ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਓਨਲੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਏ ਔਰ ਐਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨੇਮ ਅੱਗੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਸਟ ਆਪਾਂ MCQs ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ, ਐਨ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਰਮਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਦੇਖਣਾ, ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ। ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਹੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਹਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਏ। ਬਟ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਸ਼ ਜਾਂ ਬਲੈਂਕ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲ ਏ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇਜ਼ ਅ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਐਨ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਏ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਓਨੈਸਟ ਮੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੀਕ ਡੈਸ਼ ਟਰੁੱਥ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੁੱਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਓਨੈਸਟ ਮੈਨ,
ਓਨੈਸਟ ਮੈਨ, ਓਨੈਸਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੈਂਕ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚਦੇ, ਓਨੈਸਟ ਮੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੀਕ ਦਾ ਟਰੂਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੂਥ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋ ਸੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। क्वेश्चन नंबर 4th, but English is dash difficult language. English is a difficult language. English is an difficult language या the difficult language, मतलब कोई स्पेसिफिक करके नहीं गल की गई। ठीक है जी, सिंपल की आ जाएगा आ। ठीक है जी, डिफिकल्ट तो पहला मतलब आ वाला वर्ड देखना है तुसी ਬਲੈਂਕ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾउन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, मतलब नाउन तो पहला जो इंपैक्ट पाएगा आर्टिकल, देन नाउन तो पहला सॉरी एडजेक्टिव, देन नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, देन ब्लैंक। आ वाला कंसैप्ट याद है ना सारे नूं? सो इनके बिहाफ से आप आंसर करना है। ठीक है जी, आई होप कि इन्ना पॉइंट क्लीयर हो गया होगा सारे नूं। चलो क्वेश्चन नंबर 5th, शी लुक्स एज स्टूपिड एज, हुण देखो आ ऑल, एन ऑल या फिर द। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इनू प्रोनाउंस करो आउल। ठीक है जी, आउल किंदी साउंड दे रहा एड़े दी, की आंसर आ जाएगा एन, सिंपल। इज इट क्लियर? चलो हाँ जी राजे, एक छोटी जी इंफॉर्मेशन थोड़े सारे सामने, ATT कैडर का जोड़ा बेसिकली मॉक टेस्ट है वो अपना 13th of December को कंडक्ट करवाया जाना है। जेकर ATT कैडर वाले बच्चों ने हाले तक रजिस्टर नहीं करवाया अपना नेम, इस दिते हुए नंबर पर तुसी डायरैक्ट रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है जी, बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मॉक टेस्ट रहने वाला है PSCET, मास्टर कैडर, लैक्चरर कैडर, पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम का ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बेसिकली 14 दिसंबर संडे को रहेगा। ठीक है जी, चलो अगेन वेरी ईजी क्वेश्चन, हुणे ही मैं करवाया, डैश सन राइजिज इन डैश ईस्ट। हुण तुहानूं दस्सिया सी जदों आपां डायरैक्शन यूज़ करते हैं, डायरैक्शन दे नाल भी की यूज़ होएगा, द ईस्ट, द वैसट। ठीक है, सो राइट आंसर इत्थे अपना डायरैक्ट बन जाएगा द सन राइजिज इन द ईस्ट। आई होप कि क्लियर है। यस, क्वेश्चन नंबर 7th, वट डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज। हुण इत्थे ब्यूटीफुल की है अपना एडजैक्टिव, ब्यूटीफुल की है एडजैक्टिव। सो दसो आ आएगा, एन आएगा, द आएगा, एन आ सकता है नहीं आ सकता, एन तो जमा ही पॉसिबल नहीं है। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा, वट आ ब्यूटीफुल सीन या फिर वट द ब्यूटीफुल सीन, वट आ ब्यूटीफुल सीन। ठीक है जी, कितना सुंदर नज़ारा है। आई होप कि इन्नी गल क्लीयर होएगी। क्वेश्चन नंबर 8, शी टोल्ड डैश लाई। वेरी ईजी अगेन, शी टोल्ड द लाई, उन्हें आ वाला झूठ बोलिया, शी टोल्ड अ लाई, उन्हें एक या कोई भी झूठ बोलिया। मैं तुहानूं दस्सिया सी आ कदों यूज़ होगा, एनी द सेंस लई, ये गल याद रखना, एनी द सेंस। हुण कोई भी झूठ बोलिया तो इट मीनस आ यूज़ करांगे, एक झूठ बोलिया लई भी आपां आ यूज़ करांगे तो कोई भी। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका इज आ रिचेस्ट कंट्री। हुण इत्थे रिचेस्ट की है, सुपरलेटिव डिग्री की आ रहा जे, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री दे नाल आपां की लगाने आ, बेसिकली याद रखिया जे द। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री दे नाल की लगेगा द। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सो सी विल बी राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 10th, आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। यूजफुल, यूजफुल, आ यूजफुल मेटल, सिंपल है ना, आ यूजफुल मेटल। एन आ नहीं सकता तो द यूजफुल लिखने की जरूरत नहीं आपां नूं। इहदे नाल एक गल हो याद है ना, जेकर आपां किसी गोल्ड दे नाल अगे कदे भी द यूज़ नहीं होएगा, गोल्ड तो पहला कोई भी आर्टिकल यूज़ होंदा ही नहीं बेसिकली। ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग गोल्ड इज़ प्रीशियस मैटल सिंपल यूज़ होएगा, बट मैं उस दिन क्लास दे विच भी करवाया सी, बच्चों ने एरर की जगह ना अगे लिखिया सी द गोल्ड, नहीं वो स्पैसीफिक टारगेट नहीं कर रहा, अगों वो ओरनामेंट्स के डिस्क्राइब होएगा। ठीक है राजे, सो एक छोटी जी होर इंफॉर्मेशन, लैक्चरर कैडर दा एक नया बैच 1 December तो स्टार्ट होने जा रहा है, पॉलिटी का होएगा। ठीक है, सो जेकर तुहाडे नोन दे विच कोई होए लैक्चरर कैडर की तैयारी करने वाला तो उन्होंने जरूर रिकमेंड करियो। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट PSCET की सारी बुक्स का लिंक तुहानूं इस QR कोड ते, इस बार कोड ते गिवन है, तुसीं सीधा जाके इन्हूं स्कैन कर सकते हो। मैं साइड हो जानी हाँ, इत्थे स्कैन करके तुसीं बुक्स नूं डायरैक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जिहड़ा है तुहाडे सारे प्रीवियस ईयर पेपर ते सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स बनाई गई ने, जो कि तुहाडे लिए काफ़ी बेनीफिशियल रहने वाली ने। हर एक चीज़ नूं लाइटली नहीं लेना, क्योंकि पेपर तो पहला इन्हां चीज़ों नूं कवर अप करना बहुत जरूरी है तुहाडे लिए। ठीक है राजे,
सो क्वेश्चन नंबर 11 शी वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हम ध्यान नाल देखो एक्सीडेंट ते की आएगा दसो जी। हाँ जी किल्ड इन एक्सीडेंट सीधा सिंपल है। मैं तुहानूं दस्सिया सी जिथे ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी दी साउंड आ गई उहदे नाल आपां की हमेशा लगाना हुंदा है एंड लगाना हुंदा है। सो विदाउट एनी डाउट विदाउट थिंकिंग ट्वाइस आप राइट आंसर की लगा देंगे बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 डैश अर्थ मूव्स अराउंड डैश सन। हुण देखो इत्थे जेकर दो ऑप्शनस हुंदियां ना ए और द एन और द और ए या फिर द और द सिंपल भी फिर तुहानूं ना कई बार डिसाइड करन लगे दिक्कत आनी सी बट सिंपल आपां नूं इक्को ही ब्लैंक दित्ती है तुहानूं पता सन तो पहलां दा लगदा तो इट मीनस द अर्थ भी आएगा। हालांकि मैं तुहानूं दस्सिया होया स्टार्टिंग तो जो आप लिखना होंगे विद द कैपिटल लैटर बाद दे विच लिखना होंगे विद द स्मॉल लैटर। क्लीयर है सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हाँ जी हुण आपां गल करांगे एरर डिटेक्शन की क्योंकि पेपर दे विच ना आपां जे नॉर्मल हर एक लैवल के पेपर की गल करिए SSC लैवल देख लीए कॉम्पीटेटिव देखिए एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन ना बनन लग पे ने। सो रब ना करे तुहाडे पेपर च भी एरर डिटेक्शन बन जाए मैंटली प्रिपेयर रहना ठीक है जी। एरर डिटेक्शन का मतलब राजे ध्यान नाल देखो इहदा मतलब की हुंदा कि तुसी एक्चुअल 4 ऑप्शनस दे विचों ना गलत फाइंड आउट करना है। जेकर तुहानूं लगदा कि कोई भी गलती नहीं है तो तुहाडा ऑप्शन राइट आंसर की हो जाएगा डी दैट इज़ अ नो एरर। क्लीयर है हुण देखदे हां एक गल होर याद रखिया जाए जो तुहानूं दस्सिया होया है कि आपां किंदी गल कर रहे हैं टॉपिक आर्टिकल दी है ना आर्टिकल टॉपिक मैंशन है फिर इट मीनस तुसीं किहनूं देखोगे एरर दे लई आर्टिकल नूं। हुण देखो ए एन और दा कित्थे पिया होया है ए इत्थे पिया होया ही कुड नॉट बी अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इट मीनस गलती या तो ए ऑप्शन च होएगी या फिर सी ऑप्शन च देख लैंदे हां। बीइंग आ एम ए हुण देखो जिन्ने भी आपां एवें दे वर्ड यूज़ करदे हां एम एल ए ठीक है एम ए इन्हां नूं जदों आपां फस्ट वर्ड नूं प्रोनाउंस करदे हां तां की दिंदे ने साउंड एम एड़े दी साउंड किंदी साउंड दिंदे ने एड़े दी ठीक है जी। बाद दे विच जिहड़ी सैकेंड साउंड आंदी है वो म दी आंदी है इट मीनस एड़े दी साउंड दे नाल आपां की लगावांगे एन गलती इत्थे आ गई एन आना सी अपनी ए ऑप्शन दे विच बीइंग एन एम ए ओनली ठीक है बीइंग एन आना सी। सो इट मीनस अपना राइट आंसर की आ जाएगा ए ऑप्शन। क्लीयर है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 14 हुण तुसीं करो वन शुड बी ट्रू टू वनस प्रॉमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। नेम एंड फेम का मतलब हुंदा है कि तुसीं इज्जत पैसा सारा कुछ कमा रहे हो। हुण तुसीं दसो आंसर वन शुड बी ट्रू टू वनस प्रॉमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। हुण सीधा सिर्फ इक्को ही अपने को आर्टिकल दिखता पे द लाइफ का मतलब स्पैसिफिक गिवन किया होया कि लाइफ की गल हो रही है इट मीनस कोई भी गलती इस विच नहीं है जो गलती ना हो तो अपना राइट आंसर की आ जाएगा नो एरर। ठीक है जी अद्धे बच्चों ने तो गलती लभ भी ली होएगी बट आप आर्टिकल च राजे गलती लभनी है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 द मैन इज द ओनली क्रिएचर द मैन is the only creature that is endowed with the power of speech with the power of speech। दसो राजे कितने गलती है दसो जी। द मैन का मतलब तुसीं स्पैसिफिक गिवन करके कह रहे हो कि आ वाला मैन बट ध्यान नाल सुनियो जो इन्हें गल की है ओनली क्रिएचर मतलब रब द्वारा बनाई गई काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि परसन इंसान जो बनाया गया तो उनके सिर्फ मैन नहीं आएगा ठीक है वूमेन भी आएंगे सारे ही आएंगे। इट मीनस जो भी आप जरनल सेंस दे विच कोई गल करनी होंदी है जरनल सेंस दे विच कोई गल करनी होंदी है उनके नाल आपां दा कदे नहीं लगाते नॉर्मल सेंस है ठीक है। मैन मतलब सिर्फ स्पैसिफिक इस परसन नहीं मैं टारगेट करके क्या सारियां दी गल कीती एज अ क्रिएचर तो सिंपल की आएगा मैन दा नहीं आएगा इस करके एरर दे विच देखियो गलती की है ए ऑप्शन। हुण ध्यान नाल पढ़ो मैन इज़ द ओनली क्रिएचर दैट इज़ इंडॉड विद द पावर ऑफ स्पीच मतलब एक ह्यूमन ही है एंड विच मैन सिर्फ लेडीज़ की गल नहीं की हुई मैन का मतलब सारे इंसानों की गल की गई है कि ह्यूमन क्रिएचर ह्यूमन ही एवें दा परसन है जिन्होंने बोलन की एबिलिटी है। क्लीयर है राजे। हाँ जी PS चेक का नवा बैच की इंफॉर्मेशन तो तुहानूं मिल गई बुक्स नूं डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 दसो राजे एरर बुक आई रीड लास्ट वीक वॉज एन इंटरस्टिंग वन। सीधा सिंपल जी गल कही हुई है कुछ भी इहदे विच गलत लगता है तो दसो। बुक आई रीड
ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੋ ਐਰਰ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਟੀਕਲ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਵਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦਾ ਬੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਐਰਰ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਬੁੱਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਨ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਬੁੱਕ ਆਏਗਾ। होप समझ आ गया होगा। चलो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। 17th क्वेश्चन नंबर 18, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, नो एरर। ऑफ द टू आंसर, दो आंसर दे विचों दिस इज डेफिनेटली बेटर। पहली गल तो इत्थे कोई आर्टिकल दिता नहीं, ऑफ द टू आर्टिकल सही है, इट मीनस नो एरर आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्लीयर है जी, कोई लभ जे आर्टिकल का दस देना मैनू। क्वेश्चन नंबर 19, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एन एक्सपेंसिव कार। वेल्दी का मतलब होंगे कि तुहाडे कोल इनफ मनी नहीं है, नॉट इनफ मनी। अरे अच्छा, आई एम नॉट वेल्दी, तो अगे नॉट लग्या तां दसदी पई मैं, नॉट इनफ मनी। वेल्दी मतलब जिंदे कोल काफ़ी पैसा होंदा, बट अगे नॉट आ गया, नॉट वेल्दी मतलब आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एन, हाँ गलती लग गई, मेरे मुँह च पहले ही सही निकलना पे सी, बाय एन एक्सपेंसिव कार। एक्सपेंसिव दे विच सब तो पहला की आ रहा, एड, इट मीनस अगों की आएगा एन, सी विच अपना एरर है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, क्वेश्चन नंबर 20th, ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर आ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और आ एडिटर। वेरी इजी, ही हैड नो इल्यूजन्स ऑफ बीइंग आइदर आ डिस्टिंग्विश्ड, ए तो बाद अपनी केड़ी साउंड है, कॉन्सोनेंट, ए तो सही है, राइटर और अ एडिटर नहीं होंदा, एडिटर, एडिटर, एडिटर दे विच सब तो पहला केड़ी साउंड आ रही है, आर्टिकल एडे दी, सो उनदे नाल की लगेगा एन। ठीक है, सी दे विच एरर सी, दैट्स वाई अपना राइट आंसर की बन जाएगा, सी ऑप्शन। क्लीयर है राजे। सो इनदे नाल अज दे अपने 20 क्वेश्चनस इनफ हो चुके हैं। आई होप कि थोड़ा कंसैप्ट क्लैरिटी हुई होएगी। आने वाली क्लासेस दे विच आपां जदों मिक्स क्वेश्चनस करांगे इस तो भी काफ़ी डीप चीज़ां डिस्कस करांगे। ठीक है जी, एक गल होर याद रखिया जे, जरूरी नहीं कि जो भी क्लास दे विच काम करवाया जाता वो तुहाडे लई इनफ होए, इस तो इलावा भी तुसीं खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। अज के टाइम तुहाडे कोल काफ़ी सारे मटीरियल्स अवेलेबल है, चाहे तुसीं PYQs उठा लो, चाहे यूट्यूब पर देख लो, जिन्ने मर्जी क्वेश्चनस अटैम्प्ट करो उन्ना घट है तुहाडे लई। ठीक है जी। सो सैटरडे संडे तुहाडा यही होमवर्क रहेगा, आर्टिकल नू एक बारी पूरा चैप्टर फुल रिवाइज करना है, दैन अज वाला सैशन MCQs वाला लगाना है, तो क्वेश्चन खुद सोल्व करने ने। क्लीयर है जी। सो जिन्ना बच्चों ने अपने बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं करें, मेक श्योर ज्वाइन कर लेना, एंड अपने फ्री WhatsApp ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाना। ये तुहाडी आंसर की है। ठीक है, अज का सैशन आप इत्थे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।